Dear friends, in my first lecture, I explained how to do the consolidation of the holding and subsidiary balance sheet. In that lecture, I simply explained the basic concepts, how to do the analysis of profit, how to calculate cost of control, and how to calculate the MI. Now, in this discussion, in this lecture, I will take another technicality where the dividend has been declared by the subsidiary company. Now, point is that we are required to consolidate on the reporting date. That's a balance sheet date. Say in this example, it's given to be this date. Sorry. Now, dividend has been declared during the financial year. The point for consideration is how dividend affects the consolidation. डिविडेंड तो हमने साल के बीच में दे दिया, तो ये अब डिविडेंड का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या यूज है. हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि फ्रॉम होल्डिंग पर्सपेक्टिव द प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द कैपिटल एंड द रेवेन्यू प्रॉफिट. And dividend, since it has been declared during the year, so we need to find out, we need to consider what is the quantum of revenue profit and what is the quantum of a capital profit. For that purpose, we consider dividend in a separate way to find out the quantum of capital profit and revenue profit. I will explain this concept of dividend in consolidation in various scenarios. First, I have considered a case dividend is out of a capital profit and holding accounted for this. Now let me take this with an example. Holding company acquires the share on your 1/4/20, 80% share acquire करे. Profit of S Limited on 1/4/20 is given. S Limited declare dividend of 10% on 1st May 20. H credit the dividend to the investment account. अब यहाँ पे पॉइंट ये होता है कि अगर ये लाइन हमको गिवन नहीं होती तो हम सिंपली क्या कहते हैं, ओपनिंग प्रॉफिट कितना है हमारा 60,000, क्लोजिंग कितना आ रहा है 1 लाख. इट मीन्स 40,000 इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द सब्सिडरी पोस्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर बाय द होल्डिंग कंपनी. But now the dividend has been declared on 1/5/20, the position will change, which I explained. Second important aspect, H credited the dividend to the investment account. हमने investment account group 1 में पढ़ा हुआ है कि if income is received out of pre-acquisition profits, it has to be reduced from the investment. It cannot be taken to the P&L account. तो इन दिस केस, इन दिस माई एग्जाम्पल, एच ने जो डिविडेंड रिसीव हुआ है उसका ट्रीटमेंट करेक्ट करा है. आगे जो एच एरर करेगा उसको नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेंगे. अब इस केस में सबसे पहले हम करते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट. एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट हमने प्रीवियस लेक्चर में भी समझा था. हमारा ऑब्जेक्टिव है डिवाइड द प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड एज गिवन इन द बैलेंस शीट इनटू द रेवेन्यू प्रॉफिट एंड द कैपिटल प्रॉफिट. अब यहाँ पे एस का टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1 लाख. नाउ एस लिमिटेड डिक्लेयर 10% डिविडेंड, मीन्स 3 लाख की कैपिटल है, 30,000 डिविडेंड डिक्लेयर करा, मीन्स द प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड इज 130. Now point for consideration is S Limited has declared dividend on 1/5/20. This gives an indication the S Limited has declared dividend for FY 1920. Means जनरली बोर्ड मीटिंग ईयर एंड हुआ 31 मार्च 20 को, बोर्ड मीटिंग हुई से एजीएम भी हो गई, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया. तो इस डेट को हम ये एज्यूम नहीं कर सकते इट्स एन इंटरिम डिविडेंड. द लॉजिकल एजम्पशन इज दैट इट्स एन फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920. इट मीन्स द होल सब्सिडरी कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर करा है वो मैं आता हूँ. अब हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट आ गया बिफोर डिविडेंड इज 130, 60 इज ओपनिंग विच इज अ कैपिटल प्रॉफिट, remaining is the 70 which is a revenue profit. Since we are assuming the dividend has been declared out of the
पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इट मीन्स जो 1920 का प्रॉफिट होगा उसमें से डिक्लेयर कर रहा है। तो व्हाट वी एज्यूम कि जो 30,000 का डिविडेंड है ये सब्सिडरी ने कैपिटल प्रॉफिट में से डिक्लेयर करा है। तो यहाँ पे जो बैलेंस बचा 30 इज ये कैपिटल प्रॉफिट, 70 इज द रेवेन्यू प्रॉफिट। मीन्स अगर हम ये एडजस्टमेंट नहीं करते तो हमारा जो कंक्लूजन आ रहा था इन दो डाटा के बेसिस के ऊपर कि 60 इज द capital profit and 140 is the revenue profit, which changes because we include dividend in analysis of profit working। तो हमें यहाँ करना कैसे है, जो भी प्रॉफिट एस का गिवन हो उसमें जितना डिविडेंड डिक्लेयर करे यू एड इट, देन यू कैलकुलेट द कैपिटल प्रॉफिट। यहाँ पे ओपनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करके 60,000 कैपिटल प्रॉफिट है, रिमेनिंग इज द रेवेन्यू प्रॉफिट। नाउ वी नीड टू सी कि डिविडेंड किस प्रॉफिट में से डिक्लेयर किया गया है। Since in this case the dividend has been declared for 1920, it's logical to assume dividend has been declared out of capital profit। तो हमने उसको कैपिटल प्रॉफिट में से लेस कर दिया, तो हमारे पास जो बैलेंस प्रॉफिट बचा 30,000 इज द कैपिटल प्रॉफिट, 70 इज द रेवेन्यू प्रॉफिट। ये टोटल मेरे पास आ गया। इसमें एच का शेयर हो गया 80%, 24 एंड 56 इज द एच शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट। नाउ कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी है ये तो हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में समझ ही चुके हैं। 4 लाख रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैपिटल कितनी है 3 लाख रुपीज है इसकी, उसका 80% लेस करा। एच का शेयर कैपिटल प्रॉफिट में 24 है, ये हमने यहाँ से लेस करा। नाउ सिंस द नंबर इज पॉजिटिव इट्स अ गुडविल। एम आई इज वेरी सिंपल, जो हमने पहले भी सीखा है, डिविडेंड से एम आई के वर्किंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। What is the net worth? 3 lakh plus 1 lakh is the net worth। MI कितना हो गया 4 lakh का 20%, 80,000। Now if we make a console balance sheet, very simple, 5 lakh की एस की कैपिटल आ गई, इसका रिजर्व कितना आएगा 1 lakh प्लस 56, 1 lakh प्लस 56। MI 80 आ गया, गुडविल भी वर्कआउट 136, अदर एसेट्स का एग्रीगेट कर देंगे, बैलेंस शीट मैच है। तो डिविडेंड के केस में सिंपल स्टूडेंट्स को क्या करना है कि दे नीड टू व्हाइल डूइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हमें बैलेंस शीट में गिवन है सब्सिडरी का, वी नीड टू ऐड बैक द डिविडेंड एंड देन डू अकॉर्डिंगली। नाउ लेट मी टेक अनदर केस। डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय सब्सिडरी आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, बट एट द सेम टाइम होल्डिंग कंपनी अकाउंटेड फॉर सेम इनकरेक्टली। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मेरी बैलेंस शीट सेम है, सेम लेवल ऑफ डिविडेंड, ओनली थिंग इज दैट एच लिमिटेड which needs to reduce the dividend amount from the investment has taken to the dividend to the P&L account। Now in this case what we need to do, H ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर करा है 30,000 डिविडेंड डिक्लेयर करा है, 10% on this amount which comes to 30,000। इसमें H का शेयर कितना है 24, since H is holding 80%। What will we do? Simply हम अगर एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करें तो हम एंट्री पास कर देंगे एच की बुक्स में P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 24, क्योंकि एच को ये डिविडेंड अपनी इन्वेस्टमेंट से कम करना था जो P&L में ले गया। हम अब उसको हम उसको in a consolidation process we will reduce from the investment, same time we will reduce the reserve। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट सेम, कोई चेंज नहीं, हम लोगों ने सेम डाटा जूम करा है 30-70, इस पर हम टाइम फर्दर डिस्कस नहीं करते। अब यहाँ पे आता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यहाँ फर्क हो जाएगा। एस ने इन्वेस्टमेंट कितने में एच ने कितने में इन्वेस्ट करा है 4 लाख, उसको जो डिविडेंड मिला है फ्रॉम सब्सिडरी इट्स आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट which H has taken to the P&L, तो we need to reduce from the investment, हमने यहाँ पे लेस कर दिया। एच की कैपिटल 3 लाख रुपीज है, उसका 80% लेस कर दिया हम लोगों ने, और हमारा यहाँ पे एच का जो कैपिटल प्रॉफिट में शेयर है 24 लेस कर दिया। गुडविल कम्स टू बी दी 1,12,000। MI में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन एट 80,000 रुपीज। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सिर्फ एक डिफरेंस आएगा, जो एच का रेवेन्यू रिजर्व है 1 लाख रुपीज, उसमें से 24,000 विच इज अ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द सब्सिडरी आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, वो हम कम कर देंगे।
सिंपल हमने डबल एंट्री पास करी है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अभी हमने टिपिकलिटी दो केस कंसिडर करे कि एस ने डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और होल्डिंग ने उसको करेक्टली इनकॉर्पोरेट करा है, होल्डिंग ने उसको इनकरेक्टली अकाउंट फॉर करा है। अब नाउ टेक द नेक्स्ट केस, शेयर एक्वायर ड्यूरिंग द मिड ऑफ द ईयर एंड डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ये हम केस करते हैं। यहाँ पे हमने डाटा क्या लिया है कि होल्डिंग कंपनी एक्वायर शेयर्स ड्यूरिंग द मिड ऑफ द ईयर, सब्सिडरी का बिगिनिंग ऑफ ईयर में प्रॉफिट 60 है, एस ने डिक्लेयर करा 10% डिविडेंड ऑन 1/7 immediately after acquisition of share by the holding company. Here also, in the absence of any clarification, we will assume this dividend 2 has been declared by S Limited for financial year 1920. Otherwise, question means if S has declared dividend during the year, it's logical to assume S has declared dividend for last year, unless otherwise question provided. We will further take the case where S has declared dividend during the end of the year. वहां पे ट्रीटमेंट कैसा होगा हम करेंगे। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट हम स्टार्ट करते हैं। 1 लाख का प्रॉफिट है, 10% डिविडेंड दिया 30,000, टोटल प्रॉफिट 130 हो गया। 60 हमारा ओपनिंग प्रॉफिट था, 60 को हम लोगों ने कैपिटल प्रॉफिट मान लिया। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 70,000. Now, since H has acquired the share on 30th June 20, the profit earned during this year 70,000 has to divide it between the 3 months and the 9 months. 3 months profit will form part of the capital profit and the rest of the 9-month profit will form part of the revenue profit. तब टोटल हमारे पास ऐड करके कितना आ गया 77,552. This is the profit before dividend. Since we have assumed the dividend has been declared out of pre-acquisition, हमने से इसमें से 30,000 profit, sorry, my mistake, 30,000 dividend less कर दिया. Now remaining comes the capital profit and we need to ensure in analysis of profit, the aggregate of the capital profit and the revenue profit should always be equal to the profit as given in subsidy balance sheet, which is 1 lakh. Now we calculate S share 80% here and the 80% here is the revenue profit. Now case here what we assume H credit the dividend to the investment account means H ने dividend को correctly account for करा है। अब यहाँ पे देखते हैं 4 लाख की इन्वेस्टमेंट 240 लेस हो गया। H का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 38,000 आ रहा है। रिमेनिंग इज डिफरेंशियल इज माई गुडविल। MI interest simple 80,000 and on same pattern we will prepare the console balance sheet, nothing typicality. Now let me take another case, interim dividend out of current year profit. यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वर्किंग में एरर करा है, लेट मी करेक्ट। मैं आपको क्लियर करता हूँ, एग्जांपल से बेटर रहेगा। नाउ दिस इज द बैलेंस शीट, शेयर्स हैव बीन एक्वायर्ड ऑन 1/4/20, ओपनिंग प्रॉफिट, नाउ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर एट द एंड ऑफ द ईयर. It's now logical to assume it's an interim dividend for financial year 2021. यहाँ पे ये एग्जाम्पशन बिल्कुल लॉजिक है। यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल पिक करा है, यहाँ पे 1 मिनट में आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस लाइन को भी क्योंकि उसने वर्क एच क्रेडिटेड दी डिविडेंड टू दी PNL, ये हम एक बार डिलीट करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। प्रॉफिट एच का प्रॉफिट कितना है 1 लाख रुपए है, 30,000 डिविडेंड दिया 130, ओपनिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा 60,
This is the profit earned during the year. Now in this case, since we have assumed the dividend has been declared for financial year 2021, now we need to reduce this dividend from the revenue profit. Now what's the capital profit? 60,000 is the capital profit, 40,000 is the revenue profit. Correspondingly, S share is 48,000 in capital profit and 32,000 is the your revenue profit. Now we calculate investment 4 lakhs, 30% लेस करा, सॉरी 80% लेस करा, एच का शेयर कैपिटल प्रॉफिट 48 लेस करा, ये हमारी गुडविल आ गई। सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या हुआ है, जो प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जो फर्क आया है वो ये आया कि हमने पहले माना था कि डिविडेंड जो है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 1920 का डिक्लेयर करा गया है, बट यहाँ पे हमने माना है इट्स एन इंटरिम डिविडेंड फॉर 2021. नाउ इट्स लॉजिकल टू एज्यूम इट हैज बीन डिक्लेयर आउट ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट, तो हमने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में ये लेस करके ये निकाला है। उसके बाद तो हमारी वर्किंग सेम है, कोई टेक्निकलिटी इसके अंदर फर्दर बिल्ड नहीं हुई है। Now let me take a typical case. Interim dividend partly out of a capital profit and partly out of the revenue profit. It's a typical case. Let me explain. Holding company acquires the share on 30th June 20. Profit हमने same data लिया 60,000. S Limited declared 10% for financial year 2021. Question has specifically provided this. H has taken dividend to the investment account. Now let's see how this question built up. Analysis of profit. 1 lakh प्रॉफिट गिवन है, डिविडेंड ऐड करा, 130 आ गया, ओपनिंग प्रॉफिट था अलग ले गए, कुल कितना कम आया, 70,000 प्रॉफिट कम आया। 70,000 को 3 महीने में डिवाइड किया, 17,500, 9 महीने में डिवाइड किया, 52,500। इट्स अ सिंपल जो हमने ऊपर करा है। नाउ व्हाट्स द टेक्निकलिटी? एस ने जो डिविडेंड डिक्लेयर करा है वो डिविडेंड डिक्लेयर करा है फाइनेंशियल ईयर 2021। नाउ इट्स लॉजिकल टू एज्यूम कि सबसी ने ये जो डिविडेंड डिक्लेयर करा है ये उसने पूरे साल से प्रॉफिट से करा है, मीन्स पूरे साल का जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें ये 17,500 भी आ रहे हैं और ये 15,500 भी आ रहे हैं। सिंस उसने डिविडेंड जो डिक्लेयर करा है 30,000, हमने माना है कि उसमें से 3 मंथ्स का यहाँ पे करा 3/12 और रिमेनिंग 9/12 उन्होंने रेवेन्यू प्रॉफिट में से करा। दिस इज द टिपिकलिटी। नाउ इसके बाद बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा, 70 एंड 30। अगेन स्टूडेंट विल सी टोटल कितना हो रहा है, 1 लाख। इस क्वेश्चन में टिपिकलिटी जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या चीज है, सिंस इट्स एन इंटरिम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 and we need to assume the dividend has been declared for the profit for the entire year. 3 महीने का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है, 9 महीने का रेवेन्यू है, तो हमने जितना डिविडेंड डिक्लेयर करा है उसमें 3 महीने का कैपिटल प्रॉफिट में से कम करा है और 9 महीने का प्रॉफिट और 9 महीने का डिविडेंड रेवेन्यू प्रॉफिट में से कम करा है। नाउ व्हाट इज फर्दर टिपिकलिटी? एच ने सारे का सारा डिविडेंड कहाँ पे लेके चला गया है, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसके अंदर टिपिकलिटी क्या है, एच को डिविडेंड रिसीव कितना हुआ, एच को डिविडेंड रिसीव हुआ है 24,000। हाउ वी वर्कआउट, हमने वर्कआउट करा 30,000 का 80%। नाउ दिस डिविडेंड वी नीड टू डिवाइड इनटू 2 पार्ट, 3 मंथ्स क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट से एंड 9 मंथ्स क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट से। इसको अगर हमने डिवाइड करा इट कम्स टू लेट मी चेक, it's 18,000. Just a minute. ठीक है, we are going perfectly. Now H ने क्या करा है कि पूरे का पूरा 24,000 डिविडेंड उसने इन्वेस्टमेंट से लेस कर दिया है, which should not be the case. सिर्फ 6,000 रुपए जो है, सॉरी 6,000 रुपए जो है वो आपके 6,000 रुपए जो है इट्स अ डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन, ये इन्वेस्टमेंट से लेस होना था,
इसको पीएनएल में जाना था. Means now in consolidation we will pass and rectifying entry while doing consolidation investment to PNL. Now let's see how it comes up. 4 लाख की एच की इन्वेस्टमेंट है. पोस्ट एक्विजिशन जो हमने बात की 18,000 का प्रॉफिट अभी एच लिमिटेड ने डिविडेंड से इन्वेस्टमेंट से कम कर दिया है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, ये 18,000. Now what we need to do, we need to increase the investment and correspondingly we need to increase PNL. तो हमने 18,000 से इंक्रीज करा, 20,000 2,40,000 जो हमने शेयर कैपिटल है एस की उसमें 80% लेस करा, कैपिटल प्रॉफिट 56 लेस करा, ये हमारी गुडविल आ गई. एम आई सेम, सिर्फ यहाँ पे जो एक एडिशनल पॉइंट आया है कि अब 18,000 हम यहाँ पे ऐड करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपरेशन इज द सेम. Now this is the all about dividend. In next lecture I will take up the another important aspect of the consolidation, that's a revaluation of asset. If a student find any difficulty in understanding, they can WhatsApp me, which is going on the screen. Both the numbers I have WhatsApp. The students can WhatsApp me for any doubts.